وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر، سب نے جواب دیا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین ترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارا فلیئر آپ سب تک پہنچا، آپ سب نے گروپ کو جوائن کیا ماشاءاللہ سے، اور ہمارا گروپ جس کا مقصد یا ہمارا سیشن جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی تسبیحات کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ سو دیٹس وائی ہم نے اس کو ارینج کیا کہ ہم کس طرح سے، یعنی کہ ہاؤ ٹو ایڈ تسبیحات ان یور ڈیلی ڈے اینڈ نائٹ اینڈ ہول لائف، مطلب کیسے ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں ہوں مریم صفدر، ہوپ فلی آپ میں سے کافی سارے لوگ مجھے جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے بس اتنا صحیح تعارف ہے کہ اللہ کی ایک بندی ہوں جس کا نام ہے مریم صفدر، اور کوشش یہی ہے کہ جو میرے پاس علم ہے، جو میرے نبی کی احادیث، قرآن، جو اللہ نے ہم تک صحیح معنوں میں علم ہمارے پاس محفوظ ہے یا ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو آپ سب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی رہوں تا دم آخر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دیں اور میرے دل کو کشادہ کر دیں، اور آپ سب بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آج ہم ایک چھوٹی سی چھوٹی بھی بات سیکھیں اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے دل کے پردے، ہمارے کانوں کے پردے، ہمارے دماغ کے اوپر جو آئے ہوئے پردے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دے، تاکہ ہر بات ایگزیکٹلی ہمیں سمجھ آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب آغاز کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں تسبیحات کو۔ فرسٹ آف آل بہت زیادہ فضیلت یا اہمیت جو ہے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کروں گی، صرف ایک میں آپ سے واقعہ شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ کچھ تسبیحات کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں اس بات پر کہ آیا ہمیں ضرورت کیوں پڑی، ہمیں اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی کہ ہم ایک سیشن کو اٹینڈ کریں۔ صرف میں نہیں، آپ نہیں، ہم سب کو ضرورت پڑی۔ ڈیفینیٹلی آپ سب نے گروپ کو جوائن کیا ہے تو ایونلی ہر بندے نے یہی سوچ کے کیا ہوگا کہ وی گاٹ سم تھنگ نیو، ہمیں کچھ نیا مل جائے گا جس کی وجہ سے ہم اپنی تسبیحات پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا رادر یہ کہ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ مے بی کچھ ایسی چیز ہو جو ہم نے پہلے نہ کی ہو۔ تو دیکھتے ہیں آیا اس میں ہے کیا۔ تو پہلی چیز یہ کہ یقیناً ہماری تسبیحات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یقیناً ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں بہت سارے طریقے سکھائے، اذکار سکھائے، دعائیں سکھائیں، اور حکم بھی دیا کہ ان کو پڑھو، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے، ہماری ایک بیزی لائف ہے، ایک شیڈیول ایسا ہم نے اپنا خود مقرر کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، شادی میں جانے کا ٹائم ہے، کسی کے ساتھ غیبت کرنے کا ٹائم ہے، مطلب ہر اس لیول کی چیز جو ہمارے سے نہ بھی تعلق رکھتی ہو نا تو ہم اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، لیکن جو چیز ایگزیکٹلی ہماری نیچر میں رکھ دی گئی ہے، دین، قرآن، احادیث، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو چیزیں ہماری لائف میں ہمیں نہ بھی وہ تو گزارا ہو جائے گا، ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں پسے پوشت پھینک دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب جن کو آواز نہیں آ رہی وہ پلیز اپنا مائک آن کریں گے تو ان کو آواز آئے گی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، ایک لائف کا اسکیجول اتنا بزی ہے، اتنا مصروف ہوتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی نماز پڑھی، یہ فٹافٹ نماز پڑھ کے ہم وہ بھاگتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم دو کلمات جو ہیں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور واقعتاً ایسا ہے، یہ نہیں کہ مطلب یہ ایک جسٹ ایک بات ہے، نہیں، واقعتاً ایسا ہے، کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خیر سے بیٹھے، وہ سنے،
وہ اللہ के साथ बातें करे, वो कोई बयानात सुने या कोई भी चीज लाइक कुछ भी, वो बैठ के सम क्वालिटी टाइम जो है उसको अल्लाह के साथ स्पेंड करे। नहीं है इतना टाइम, क्यों? बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, सारा दिन दिमाग जो है ना घूम रहा है, आज मैंने खाना बनाना है, आज फलाने आना है, फलाने जाना है, अच्छा अम्मी ने ये काम बोला हुआ था, मियाँ ने ये बोला हुआ था। मतलब हर एक चीज जो है ना ऐसे सर्कल में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, और ये दिमाग जो है ना हर वक्त उन्हीं बातों में लगा हुआ है। ठीक है, अब नमाज पढ़ने बैठे, इवन अपना मुहासबा कीजिए, अपने आप को देखिए। हमें सेल्फ काउंटेबिलिटी करनी चाहिए, काउंट करना चाहिए खुद को कि सॉरी जी खनसा रियाज जी बोलिए, आप अनम्यूट कर सकती हैं, मैंने परमिशन दी हुई है ऑफ कोर्स सबको। देखिए अनम्यूट कर सकती हैं, बोलिए। अच्छा, तो हमें खुद को काउंट करना चाहिए, इसको कहते हैं अपने आप का मुहासबा करना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस डगर की तरफ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आप सबके क्वेश्चंस भी लूंगी, मेरे माइंड से पॉइंट ना निकल जाए, इसलिए प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है? अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो लाजमी हो या कहीं मैं कुछ गलत बोल जाऊं या कोई ऐसी चीज हो जो आप मुझे गाइड करना चाहें तो प्लीज टेक्स्ट कर दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स में। तो हमें देखना है कि हमने करना क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं, और हम किस मकसद के लिए हैं। हमारा तो इवन ये हाल है नौजुबिल्ला, नमाज पढ़ते हुए हम अपने मेंटली लेवल को सेट नहीं रख पाते हैं। ठीक है, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होता, माइक म्यूट कर लीजिए। वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होता, क्या होता है, हम यहाँ नमाज पढ़े हैं, अल्लाह अकबर किया, हाथ बांध लिए, नमाज पढ़े, लेकिन माइंड जो है वो किचन में है, चूल्हे पे रखे हुए दूध की तरफ। माइंड जो है वो आज खाना क्या बनाना है उसकी तरफ है। माइंड जो है वो मेरी सास ने क्या बात बोली उसकी तरफ है। हमारी नमाजों का तो ये हाल है। ठीक है, तो टॉपिक नमाज नहीं है, टॉपिक तस्बीहात है। एक छोटे से स्टेप से इंशाल्लाह स्टार्ट किया है, बहुत सारे सेशंस आएंगे एंड ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आई विश के लोग इसके साथ जुड़े और इसको सीखें ताकि हमारी लाइफ जो है वो अच्छे वे में इस्लाम के साथ जुड़ जाए। बिकॉज अल्लाह ताला ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यहाँ पे सोचने वाली बात है, कैमरास ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे जाएगी। आप अपने कैमरास ऑफ रखिएगा, ठीक है? किसी का कैमरा ऑन हो चुका हुआ है, सो प्लीज बी केयरफुल। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, अरीब जो है इनका कैमरा ऑन था, ऑफ कर लीजिए। अच्छा जी, यानी मेरा पॉइंट देखा, मिस हो गया ना, मेरा माइंड उधर चला गया कैमरा की तरफ कि किसी का वो फेस जो है वो ना आ जाए वीडियो में, मेरे माइंड से पॉइंट ही निकल जाता है कि मैं क्या बात कर रही थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बता सकता है मैं क्या बात कर रही थी, अनम्यूट करके? कोई बंदा अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि मैं क्या बात कर रही थी? जी अस्सलाम वालेकुम मरियम जी। हाँ, वालेकुम वही सलाम। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वो वाली हाँ बात कर जी, रहे थे आप। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर मेरी प्यारी रोशन खान जी। मेरी इस्लामी बहन है और बहुत हर दिल अजीज है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर मेरे सेशन में हर चीज़ में माशाल्लाह आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैर। हम कह रहे थे कि हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, तो यहाँ सोचने वाली बात है मेरी जान। सभी आप सारे मेरे जिगर के टुकड़े हैं, दीन के दाई अल्लाह हम सबको बनाए। मेन चीज इसमें ये है मेरी जान, क्या हम वाकयातन दीन में सारे के सारे दाखिल हैं? थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ के अपने आप को चेक करेंगे, क्या वाकई हम दाखिल हैं? और जवाब यही आएगा, नहीं। अब यहाँ एक और चीज, एक पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पहले यहूद नसारा थे उनकी तरह हमने दीन को अपनाया हुआ है? सोचिएगा, वो क्या करते थे, जो चीज पसंद होती थी
اس کو ले लेते थे, जो चीज पसंद नहीं होती थी उसको छुपा देते थे, ठीक है। तो हम भी आज उसी चीज में फंसे हुए हैं। मुझे पसंद है कि मैं नमाज पढूं, सो दैट्स वाई मैं नमाज पढ़ी हूँ, बट मैं हिजाब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं हिजाब करूं। या फिर मुझे पसंद है कि मैं सर पे दुपट्टा रखूं, लेकिन मैं निकाब नहीं कर सकती, राइट? मैं सही कह रही हूँ ना? कहीं ना कहीं हम अपने दिल की बात अपने अंदर के शैतान को लेके आ रहे हैं। डजेंट मैटर यहाँ पे कि मेरा टॉपिक कहीं और ना चला जाए, ठीक है। ये नहीं है कि मैं कहीं और लेके जा रही हूँ, टॉपिक वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा कि हम अपने इस्लाम में भी दाखिल नहीं पूरे के पूरे, जस्ट जो चीजें पसंद है उनको कैरी किया एंड निकल चले बस। हम समझते हैं कि हमने इतना सा काम कर लिया ना, हम काफी है, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, इस्लाम सख्ती वाला नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है मेरी जान, आसान भी नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है। इल्ला ये कि जब आप उसमें दाखिल होते हो ना, अल्लाह ऐसे रास्ते, ऐसे जराए बनाता है, हर चीज स्मूथली आपके लिए खोल देता है, फिर उसमें रहना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है एंड बहुत सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी लाइफ में अब छोटी सी जो हम कोशिश करने वाले हैं, यूं समझे कि इतना टाइम नहीं है, बिजी है, बिल्कुल अपने अल्लाह को टाइम नहीं दे पा रहे, अपनी कुरान की क्लासेस को टाइम नहीं देते, अपने जो मतलब जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सोचना चाहिए हमें कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। तो उसमें एक छोटी सी आज मैंने कोशिश की है, सेम उस तरह। अब इतनी सी छोटी सी कोशिश से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? अगर हमारा तवक्कुल अच्छा होगा ना, तो ये छोटी सी जो कोशिश है ना, ये एक कतरे के मानिंद है जो कि दरिया बन सकता है आप सबके साथ के साथ, इंशाल्लाह ताला। और आप सब भी करेंगे, मैं भी करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये कोशिश के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन करती हूँ। कोशिश बहुत छोटी है, एक कतरे की मानिंद, लाइक उस चिड़िया की तरह, जो मिसाल आप बचपन से लेके आज तक खुद भी सुनते आए हैं, अपने बच्चों को भी बताते आए हैं। एक चिड़िया है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर अपनी चोंच से पानी फेंकती है कि ये बुझ जाए, जबकि वो बहुत बड़ी आग होती है, वो बुझने वाली नहीं होती है। मतलब दिखने में किसी को नहीं लग रहा कि वो बुझेगी किसी चीज से, ठीक है। लेकिन वो चिड़िया कोशिश करती है, ये कहावत है, कहानी है, लेकिन इसके पीछे जो समझने वाली मिथ है उस पे आइए। किसी ने कहा कि तुम्हारी इतने से एक कतरा पानी से क्या होगा? उसने कहा कल क्यामत वाले दिन अल्लाह के सामने एटलीस्ट मैं इतना तो बता सकूंगी कि मेरी जितनी इस्तात थी, ताकत थी, मैंने उतना अपना हिस्सा उसमें डाला है। तो हमें भी उस हिस्से से, उस कतरे से नन्ही चिड़िया बन के आगाज करना है एक अच्छी चीज का, अपने आप को संवारने का, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को जहन्नुम से बचाने का। आप खुद अपनी जहन्नुम और आप खुद अपनी जन्नत बना सकते हैं। तो इस अहद के साथ कि इंशाल्लाह हम हर उस चीज पे वर्क करेंगे जिस तरफ अल्लाह हमें लेके जाए। आज आप सबका यहाँ आना आपके इख्तियार में नहीं था, मेरे इख्तियार में नहीं था, ये उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। उसने आपको यहाँ लाया है, ठीक है, किसी मकसद के लिए लाया है। अल्लाह ताला खुद अपने बंदे को चुनता है, टाइम देता है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं स्कूल हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में हूँ, बहुत सारे इश्यूज हैं, बट जिसको अल्लाह ने तौफीक दी वो इस वक्त यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त अल्लाह ताला के फरिश्ते हमारे ऊपर पर फैलाए हुए अपनी रहमतें बरसा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबके घरों में उस रहमत से हम सबको मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है, आमीन। तो अब वो जो चिड़िया हैं वो हम हैं, छोटी छोटी चिड़िया जिनके पास टाइम नहीं है, शादी होने के बाद, शादी से पहले भी, आजकल तो मेरी जान किसी के पास भी टाइम नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इवन आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे भाई हमें ना छेड़ो, हमें ना बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन हमने इस टाइम में से अपने लिए टाइम निकालना है ताकि हम अपनी जन्नत को बना सके, ठीक है।
तो अब ये जन्नत जो है वो हमारी तस्बीहात के थ्रू, छोटा सा स्टेप, तस्बीहात की अहमियत के हवाले से जो बात है मैं आपसे शेयर करती चलूं, जिसमें हमारे पास है जी अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह से। और ओके, तो सबसे पहली चीज मेरी जान, अल्लाह ताला खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ये तस्बीहात वो हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इनका इंशाल्लाह ताला। वो है जो डेली बेस पे हमें पढ़नी है, कोई खास लंबे चौड़े वज़ाइफ लाइक लंबी लंबी चीजें, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जिसको हम बहुत इजी वे में, एक छोटी सी लास्ट इसके बाद में ट्रिक एंड टिप बताऊंगी जिससे आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो जाएगी इंशाल्लाह, जो कि मेरी कोशिश है, जिस मकसद के लिए ये मैंने सेशन जो है वो रखा है। अल्लाह ताला के रसूल खुद फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इससे और भी बहुत कुछ मिलता है। कोई चाहता है ना कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हो जाए, दरूद पढ़ना शुरू कर दें। कोई चाहता है मेरे सारे गुनाह माफ हो जाए और मैं उस अल्लाह के नजदीक हो जाऊं, दरूद पढ़ना शुरू कर दें। आप ये पढ़ना शुरू करें, इसकी बरकतें आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, आप अपने बच्चों में देखेंगे। आज सबसे बड़ा हमारा पेरेंटिंग इशू ये है कि हमारी फर्माबरदार औलाद नहीं है, ठीक है। ये पढ़ना शुरू करें। क्यों? क्योंकि इसके पढ़ने से रहमतें भी आएंगी, आपके गुनाह भी धुल जाएंगे, दर्जात भी बुलंद होंगे, और अल्लाह ताला की ऐसी खास मतलब करम नवाजी होगी ना कि आप देखते रह जाएंगे। और ये पर्सनली इन चीजों को मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को करें। दूसरी चीज, अफजल जिक्र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अफजल जिक्र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और बंदों के लिए चुना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। फिर छोटे छोटे अल्फाज है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का खजाना है। कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 10 to 5, 15, आधा घंटा कर लीजिए, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है, स्पेसिफिक बैठ के इबादत नहीं हो रही है या तस्बीहात नहीं पढ़ी जा रही है, तो उसका तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। अल्लाह ताला की महबूब कलिमात हम सबको आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों तलब नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो क्या मैं और आप, हम सब नहीं चाहेंगे अल्लाह हम पे रहम करे? अरे अल्लाह जब रहम करेगा तो आप सोचिए कि अल्लाह की क्या क्या बरकत मिलेंगी। हम यही चाहते हैं ना, कोई मुआजिजा हो जाए, सुकून एकदम से आ जाए, जिंदगी बदल जाए, सब अच्छा 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 हो जाए। तो इस्तिग़फ़ार को क्यों नहीं पकड़ लेते? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मसाइब से निजात, ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी डिफरेंट डिफरेंट आपको हदीस मिलेंगी। मैंने शॉर्टली बिल्कुल आपके सामने रखी हैं, ठीक है। मसाइब से निजात, हर मुसीबत का हल जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जिक्र करना शुरू कर दें, ठीक है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो एक दिन ये कलमा उसे उसके मुसाइब, सारी मुसीबतों से निजात दे देगा। हर एक चीज से आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे जो पूरे इखलास के साथ पड़ेगा, यहाँ तक कि वो कलमा अर्श तक पहुंच जाता है। ये इसी सूरत में होता है जब कबीरा गुनाहों से बचा जाए। तो कबीरा गुनाहों से अल्लाह हमें, हमारी हिफाजत फरमाए, हम कभी भी ना करें। आगे देखिए, तुलुए आफ्ताब के वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नजदीक तलुए तलुए आफ्ताब के वक्त तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करना, और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की तारीफ बयान करना, अल्लाह पाक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं कहना, और इस्माईल अलैहिस्सलाम में से दो या दो से ज्यादा गुलाम आजाद करने से ज्यादा बेहतर है। इसी तरह नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करना, मेरे नजदीक सेम वही बताया कि 4 गुलामों को आजाद करने के बराबर है। अब ये कलमा कौन सा है देखिएगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हम सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीहात फातिमा,
20 नेकियां मिल जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अहादीस मिलेंगी। 20 नेकियां मिलती हैं, 20 बुराइयां जो हैं वो दूर होती हैं। ठीक है। और ये तस्बीह पढ़ना सदका भी है जोड़ों की तरफ से। ठीक है। उसके अलावा जुबान पर इतने हल्के कलिमात लेकिन मिजान में सबसे भारी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला किसी बहाने चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे जुड़ जाए, तो क्यों ना हम छोटा सा स्टेप लेके अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें। अब देखिए, तमाम चीजों से बेहतरीन कलिमात जो कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि बचपन से हम क्या सुनते आ रहे हैं, बचपन में सब क्या कहते होते थे, भाई आप ऐसा करें कि सुबहान अल्लाह पढ़ें और अपने लिए जन्नत में दरख्त लगवाएं। कितनी अहादीस हमें मिलती हैं। कई जगह पे ये भी अहादीस मिलती हैं कि अगर आप सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं तो दरख्त लगते हैं। ठीक है, फलदार दरख्त, फूलदार दरख्त। कई जगह पे ये भी सुनने को मिला है सोने के दरख्त लगते हैं। कई जगह पे ये भी आया कि मतलब थकावट खत्म हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी को ये दिया, लेकिन हम ये नहीं कर पाते। ठीक है। तो अब इसका बेहतरीन हल क्या है कि अहमियत हमें पता चल गई। ठीक है, उठते बैठते चलते फिरते हम कैसे इसको अपनी लाइफ में ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। शायद आप में से काफी सारे लोगों ने ये वाकया सुन रखा हो या शायद किसी ने ना भी सुना हो, बट मैं हल्का सा आपके सामने रखती हूँ। हजरत इमाम अहमद हम्बल का वाकया है। एक नान भाई होते हैं जो कि रोटियां लगाते हैं। ठीक है। हजरत अहमद इमाम हम्बल जो हैं, उन्होंने क्या किया, इमाम अहमद हम्बल वो नमाज से फारिग हुए और निकल गए। ठीक है, वैसे ही दिल किया निकल गए, सफर करते करते काफी दूर चले गए। शॉर्टकट में सुना रही हूँ। ठीक है। काफी दूर चले गए और वहां जब देखा तो काफी टाइम गुजर चुका था। अब थोड़ा सस्ताने की कोशिश कर रहे थे, एक मस्जिद में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ नहीं लेटना। मतलब अभी नहीं, नमाज के बाद के टाइम आप कोशिश करिएगा आने की ना, इस तरह से कुछ कहा गया। वहां से एक नान भाई गुजर रहा था, तो उसने कहा कि आप क्यों बुजुर्ग के साथ ऐसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये बुजुर्ग इस तरह मुझे कह रहे हैं, तो अभी फिलहाल मैं इजाजत नहीं दे सकता कि मस्जिद में आप आके लेट जाएं या आराम करें। तो उन्होंने कहा, वो जो नान भाई था उसने कहा कि आप मेरे साथ आज बुजुर्ग, मैं आपकी खिदमत करता हूँ, मुझे मौका दीजिए। इमाम अहमद हम्बल उनके साथ चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो वो नान भाई जो है वो खिदमत खैर उसने की होगी, मेहमान नवाज होते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जब काम कर रहा था तो उसने क्या किया कि वो रोटियां लगाए जा रहा था और साथ में पढ़े जा रहा था, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। तो चूंकि ये हजरत इमाम अहमद हम्बल जो है वो पास थे, उन्होंने पूछ लिया कि नान भाई मतलब ये मैं जब भी देख रहा हूँ तो आप कुछ बोल रहे हो, तो क्या बोल रहे हो। तो उस शख्स ने बताया, नान भाई ने बताया कि मैं इस्तिगफार पढ़ता हूँ। तो हजरत इमाम जो है उन्होंने पूछा कि क्या इसने कभी कोई फायदा भी दिया है। तो वो जो नान भाई था उसने कहा, आज तक हर चीज अल्लाह ने दी है। ठीक है। इवन अल्लाह ने इतनी बरकत दी हुई है कि यहाँ पे और भी काफी सारे तंदूर हैं जिनकी रोटियां लगती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रश मेरे पास होता है, सबसे ज्यादा मतलब लोग मेरे पास से लेते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी बरकत है, इसी की बरकत है सारी। लेकिन आजकल एक दुआ अल्लाह से मांगी हुई है जो अभी तक कबूल नहीं हुई है, उसमें भी टाइम लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि वो क्या है। तो उस नान भाई ने बताया कि मैं बुजुर्गाने दीन जो हैं उनसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी दीन की चीजें सीखूं। मेरा दिल करता है मैं कुछ वो करूँ। तो मैंने ना एक इमाम अहमद हम्बल हैं, बुजुर्ग जिनके बारे में दीन के हवाले से सुना हुआ है, तो आजकल अल्लाह से ये तलब की है, दुआ रखी है कि मैं उनसे मिलूं। ठीक है, मैं भी कुछ सीख लूं या मैं उनसे मिलूं। तो इमाम अहमद हम्बल कहते हैं, गोया उन्होंने बताया मैं ही इमाम अहमद हम्बल हूँ। ठीक है। और उन मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन जाने, मे भी आप लोगों के भी गूज बम्स हो। कि उन्होंने कहा, गोया मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई चीज उठा के ले आई है, मीन्स ऐसे जैसे फरिश्तों ने मेरे साथ पता नहीं क्या ऐसा किया है या मुझे धकेला है किसी चीज ने, और मैं इस तरफ आ गया हूँ ना, मेरा कोई काम ना कुछ ना कुछ, लेकिन मैं इस तरफ आ गया हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन मैं आ गया हूँ। किसकी वजह से हुआ,
इस्तिग़फ़ार की वजह से, उसकी बरक़ात की वजह से। और यकीन जानिए इस्तिग़फ़ार के बारे में पर्सनली मैं आपको बताऊं, ये आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, आपके इंसोम्निया, एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, सफर कर रहे हैं, ये इस्तिग़फ़ार खत्म कर देता है। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम भी ये कर सकें। अच्छा, तो मेरे जिगर के टुकड़ों, अल्लाह आप सबको दीन का दाई बनाए। सबसे बेहतरीन चीज, एक छोटी सी पोस्ट आई, और कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई पोस्ट आती है, हम उसको ऐसे पकड़ा, फोन स्लाइड अप किया, ठीक है इट्स ओके जाने दो, या बस मोटा 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 पढ़ के खली बोली बस छोड़ दिया। तो मेरे पास भी एक पोस्ट आई, मैंने उसको बड़ी तफसील से पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद मैंने क्या किया कि एज यूजुअल डिलीट कर दिया। ठीक है, और काफी अरसे बाद जो है वो चीज जो मैंने पढ़ी थी वो मेरी लाइफ में खुद ब खुद होना शुरू हो गई। ठीक है, जस्ट अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर दे कि मेरी तस्बीहात जो है ना वो मेरे साथ ऐसे जुड़ जाएं कि मतलब एवरी टाइम मेरे मुंह से तस्बीहात हो, मतलब अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र के अलावा मेरे पास कुछ ना हो। मैं ये चाहती थी, एंड अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन जाने, अब ये आलम है कि उठते बैठते चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं, अल्लाह की तौफीक है कि उठते बैठते मैं अज़कार के साथ जुड़ी हुई हूँ। और इसी हाल में अगर मौत आ जाए तो मैं कहती हूँ क्या ही मौत होगी। हम यही चाहते हैं ना कि हमें कलमा नसीब हो, हम अल्लाह के साथ जुड़े हों, तो हमें मौत आ जाए। तो उसकी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है, लेकिन स्ट्रगल मैंने और आपने करनी है, तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। तो अगर इंशाल्लाह अगर ये होता है, मीटिंग एंड होती है, तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दोबारा मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए उस चीज की तरफ आते हैं। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं या आपसे, नहीं पहले शेयर करते हैं। मीरजान, जब हम टाइम बिजी होता है उसमें हम पढ़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, अपनी चीजों को उस तरह से कर नहीं पाते, तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपके घर में आप सफाई भी करते हैं, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, चीजें भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, अगर नमाज के बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो आप इस तरह कर सकते हैं, जो मैंने खुद पर्सनली किया। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपके घर के जितने रूम्स हैं उनको नेम दीजिए, उनको एक नाम दीजिए। मेरा इस ये जो रूम जिसमें इस वक्त मैं बैठ के क्लास ले रही हूँ, ये मेरा इस्तिग़फ़ार का रूम है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी बात है। हम क्या कहते हैं, इट्स माय बेडरूम, ये मेरा लग्जरियस रूम है, ये मेरा डबल बेडरूम है, ये मेरा पता नहीं क्या क्या वाला रूम है। ठीक है, अब तो बहुत कुछ आ चुका है मेरी जान। तो मैं प्राउडली ये कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा इस्तिग़फ़ार वाला रूम है। ठीक है, इसके साथ वाला जो मेरा कॉरिडोर है वो मेरा सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वाला रूम है। उसके साथ जो मेरा रूम है वो सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही का रूम है। मेरा जो डाइनिंग टेबल एंड हॉल वाला एरिया है वो मेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वाला हॉल है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मजे की बात है। और मेरा जो किचन है, छोटा सा घर है मेरा, मेरा जो किचन है वो मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह है। ठीक है, और जो मेरी बालकनी है, जो मेरा बाहर वाला एरिया है, जैसे मेरी गैलरी है, वो मेरी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वाली जगह है। एंड यकीन जानिए मैं जब कदम रखती हूँ ना, ये जुबान ये होंठ अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद चलते हैं। मैंने जस्ट कोशिश की, मैंने मेहनत की, मैंने दुआ की, और उसका रिजल्ट अल्लाह ने दिया। मैं जब भी इस कमरे में आती हूँ, पाँव रखती हूँ, मेरे मुंह से इस्तिग़फ़ार निकलता है। उस जगह जाती हूँ, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, उस जगह जाऊंगी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, दुरूद इब्राहिम, ला इलाहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये वो छोटी सी तस्बीहात हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में लाना है। तो आपने क्या करना है, अपने कमरों को नाम देना है। ये आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप सब ने इसका होमवर्क भेजना है मुझे एटलीस्ट 3 डेज तक।
प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, और आपने मुझे बताना है अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। ठीक है। आपने अपने बेडरूम को इस्तिग़फ़ार का, बच्चों को स्कूल भेज लिया है, ऑफिस चले गए हैं, सब कुछ हो गया है, सुबह के अज़कार बाकी हैं, पेंडिंग है, जिसमें खास करके तस्बीहात है, और उसका गिल्ट हमें ले डूबता है अक्सर इस चीज से कि हाय मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ूं, अभी ये करना है, अभी वो करना है। अरे घबराना नहीं, सोचना भी नहीं, कोशिश करनी है, हिम्मत पकड़नी है, और अपने आप को उस काम पे जमाना है, आना है, उठाना है खुद को। सबके लिए जीते हैं, सबके लिए करते हैं, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालेंगे, थोड़ा खुद को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप अपने हर एक रूम के अंदर एक पेपर, स्टिकी नोट्स होते हैं मेरे जान, आप सबके घरों में बच्चों के पास होते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास टेप है, ठीक है, और पेपर है, उसके ऊपर लिख लीजिए और एक चिट सी बना लीजिए और अपने कमरे में लगा दीजिए। झाड़ू लगा रही है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जब तक उस कमरे में है। 3 दिन प्रैक्टिस करनी होगी आपको, और मैं ये दावा करती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, आप सच्चे दिल से, पूरे तवक्कुल से अगर आप ये करेंगे तो चौथे दिन आपको कोशिश नहीं, अल्लाह का फजल नजर आएगा इंशाल्लाह, और आप वो करती नजर आएंगी अपनी लाइफ में। एंड जब आपके अंदर उसका थोड़ा सा असर नजर आना शुरू हो जाए, तो फिर अपने बच्चों को स्पेशली संडे या सैटरडे वाले दिन उनको बताइए, साथ ले लेके चलिए। बोलना कुछ नहीं कहिएगा, जस्ट आपने मेरी तरफ देखना है, मेरे लिप्स की तरफ देखना है, और जो मैं बोलूंगी उसको आपने इमेजिन करना है कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है। तो फिर आप इस कमरे में आए, जैसा मैंने किया, मैंने पहले खुद वर्क किया, फिर मैंने बच्चों के लिए वो चीज रखी। ठीक है। एंड जब मैं उठी, बेड से लेटी हुई थी, जब मैंने देखा बच्चे इस टाइम अच्छे मूड में है, तो मैंने बच्चों को साथ लिया और मैं बाहर निकली पहले, फिर मैं कमरे में दोबारा एंटर हुई। एंटर होके मैं चीजें उठा रही थी, यहाँ पे सॉक्सेस पड़ी थी, कपड़े पड़े हुए थे, स्कूल के जर्सियां, मतलब सब कुछ जैसे बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो उसी तरह मतलब वो सारा कुछ था। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को बताया कि बेटा आपके जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, बस आपने फोकस रखना है, ठीक है। तो ऐसे बोल के फिर मैंने शुरू कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी उठा वो भी उठा, सारा कुछ उठा रही हूँ, साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी हूँ। फिर मैं अगले कमरे में गई, वहां पे जाके अलमारी सेट करना शुरू की, और जितनी देर तक सेट करती रही मैं यही पढ़ती रही, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है। फिर जब मैं नेक्स्ट रूम में गई, फिर मैं वहां जाके अपने चीजों को, बैग्स को, बुक्स को सेट कर रही थी, जूतों को सेट कर रही थी वहां पे पड़े हुए, और मैं एक ही चीज पढ़े जा रही थी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और बच्चों ने गैस कर लिया था, उनको पता चल गया था कि मामा हमें कुछ बताना चाह रही है, सिखाना चाह रही है, एंड उन्होंने लिटरली साथ पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं कामयाब हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये वक्त है करने का, ये वक्त बोलने का नहीं है। हमें क्या, हम बच्चों को बोले 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 बोले, नो, बच्चे बोलने से नहीं मानते, बच्चों को करके दिखाइए। जब आप करेंगे तो वो खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा। फिर जब मैं हॉल में गई, हॉल में डाइनिंग टेबल को समेट रही थी, एंड बाकी चीजों को, बर्तनों को उठा रही थी, एंड मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया। छोटा दुरूद, अगर बड़ा नहीं पढ़ा जाता, छोटा दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इतना शुरू कीजिए, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद पे आइए, फिर बड़े दुरूद पे आ जाइए। ठीक है। वो पढ़ना शुरू किया। फिर जब मैं किचन में गई, किचन में काम किया, एंड किचन में जाके मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। एंड फिर जब मैं, गैलरी में काम भी नहीं था उस वक्त मेरा, लेकिन मैं बाहर गई और चक्कर लगाए, वॉक करी, और उसमें भी मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, ताकि मेरे बच्चों को समझ आ जाए। एंड आपने भी यही करना, सिर्फ 3 दिन मेरे कहने पे कीजिए, अल्लाह ताला की बरकत देखिए, फिर आप सब इंशाल्लाह ताला अपनी तस्बीहात को, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र के साथ तर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरा आज का सेशन था, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप सबने बहुत फायदा उठाया होगा, और रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। लिटरली कुछ सेकंड्स रह गए हैं, आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं मीटिंग दोबारा ऑन करके लिंक सेंड करती हूँ, या आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज आप दोबारा आइए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं कि आखिर हम इसको और किस तरह इनहेंस कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। इसके बाद आप मुझे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी।